Welcome back guys to my channel. I am Devjyoti Mitra. Again got influenced to all of you with lots of love and happiness. I think everyone is really very fit and fine and also doing well in this pandemic situation too. So without any sort of further delay, let's get straight to the main point of view for what I have made myself visible. So I have discussed about the part 1 of finite and non-finite verb in my previous video. So if you are new, then don't worry. You just don't need to be worried about anything else. Just simply go to my description and get a link, and through this link you can definitely gonna be able to have the previous video of mine and also can gather knowledge and perception about some definitions, basic conceptions about finite and non-finite verbs. So today I have brought the part 2 of finite and non-finite verb for all of you. So prior to start my video, one thing I also want to share to all of you is that although I do not have any standard infrastructure, that's why to show the proper image, the imagery expressions, imagery representations on the screen, it's quite impossible for me. So whatever I am saying, just try to be more and more focused on that. And you also, if it is possible, then you also can write down all the things whatever I am saying. ओके सो पिछली वीडियो में मैं डिस्कस किया था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की वर्ब की पार्ट 1 के बारे में. आज मैं लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए पार्ट 2. ध्यान से सुनिएगा. ओवरव्यू आपको मिल जाएगा पार्ट 1 में. तो व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब? टुडे दिस इज आवर टॉपिक. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब विच डजंट रिलाई और डजंट चेंज एज पर द सब्जेक्ट्स, टेंस, पर्सन एंड नंबर इन अ सेंटेंस. डिड यू गेट दैट? वो ऐसा एक वर्ब है जो चेंज नहीं होता. किसके अकॉर्डिंग्स में चेंज नहीं होता? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का टेंस, नंबर और पर्सन के मुताबिक वो चेंज नहीं होता. इट रिमेन्स एज इट इज़. ओके, लाइक इफ आई ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ यू, then you can definitely going to be able to get it very easily. Okay, like first example is suppose I like to play cricket. Second example is she likes to play cricket, and third one is suppose he liked to play cricket. There are 3 sentences, and the verb, main verb like has been changed in many ways. Firstly, I is a first person singular number, that's why the verb like remain the same, like. Okay, thereafter we can find she is a third person singular number, that's why the like has been changed into likes. Third one is the example of past tense, that's why the verb like changes into liked. वो change हो रहा है, that's why these are called, like this verb namely like is called finite verb because it does change as per the tense, number or person. Did you get that? Okay, so और एक verb है उसमें to play. play verb है ना, इसके आगे to है, तो to play it remains same, change नहीं हुआ, इसीलिए उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं. Non-finite verb is also classified into 3 types. One is like infinitive, 2 is gerund, 3 is participle. तो infinitive क्या होता है? 3 तरह की होता है ना नॉन फाइनाइट वर्ब. तो पहला क्लासिफिकेशन का नाम है infinitive. The first classification is infinitive. So let us know about the definitions of infinitive. Infinitive क्या होता है? Infinitive is a base form of verb which is preceded by to. Infinitive एक verb का base form होता है जिसका आगे to ऐड किया जाता है. इसको कहते हैं इन्फिनेटिव. ज़्यादातर वर्ब के पहले टू यूज़ करते हुए हम लोगों को ये दिखाई देता है. तो ये जो होता है ना, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहता है. ओके, आप कह सकते हो उस इन्फिनेटिव को, क्योंकि वो एक साथ एक सेंटेंस में नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव की तरह काम करता है. इसीलिए तो हर इन्फिनेटिव का पहले टू नहीं होता. जिस इन्फिनेटिव का पहले टू नहीं होता उसको कहे जाते हैं बेयर इन्फिनेटिव. ओके, द इन्फिनेटिव विच डजंट कंटेन विच डजंट कंसिस्ट ऑफ टू, दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. तो एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ यू. लाइक टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज. तैरना सेहत के लिए अच्छा है. ओके, डिड यू गेट दैट?
तैरना सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे टू स्विम इट हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस एज अ नाउन, ओके, एंड इट इज़ अ सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो गाइज व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक ऐसा फॉर्म होता है एक सेंटेंस का जिसके बारे में कुछ इस सेंटेंस में लाइक हम लोग पोएट्री कर रहे हैं, जिसका काम को हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में कुछ कहना चाह रहा है, लाइक हम लोग कहना चाहते हैं ना, बताया जा रहा है कुछ इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में। सो टू स्विम तैरना, तैरना क्या है, सेहत के लिए अच्छा है, उसके बारे में कुछ बातचीत हो रहा है। गाइस डिड यू गेट दैट? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड और ट्रीटेड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये सब्जेक्ट में है, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव व्हेन इट विल बी ऑब्जेक्टिव, व्हेन इट विल बी सेट इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक आई लाइक टू डू दिस वर्क, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। Here in the place of object you can find the infinitive. I like to play cricket, I like to play football. This is the objective infinitive. And whenever you will find bare infinitive in a sentence, I am just trying to give an example to all of you. जब एक सेंटेंस में ऐसा कुछ लिखा होगा कि रमेश always makes us laugh, रमेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, रमेश always makes us laugh, रमेश हमेशा हम लोगों को हंसता है, हंसने में मजबूर करता है। तो ये जो लाफ है LAUGH, लाफ है बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल, ओके, समझ में आए। पर ज़्यादातर टू यूज़ होता है वर्ब के साथ, जब मिलके नाउन की तरह जब ट्रीट करते हैं ना, काम करता है एक सेंटेंस में, तो उसको इन्फिनेटिव के नाम से वो जाने जाते हैं। और जिसके लाइक साथ में टू नहीं ऐड होता वो है पेयर इन्फिनेटिव, लाइक रमेश ऑलवेज मेक्स अस लाफ। एंड जो नाउन की तरह अगर काम करता है वो होगा टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। दिस इज ऑल अबाउट द इन्फिनेटिव। सो देयर आफ्टर लेट्स गेट स्ट्रेट टूवर्ड्स जिरांड। जिरांड, व्हाट इज जिरांड? जिरांड एक ऐसा फॉर्म होता है वर्ब का जिसके साथ ING ऐड करके नाउन की तरह उसको यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्बल नाउन। वर्ब के साथ ING ऐड होने के बाद ये नाउन की तरह काम करेगा एक सेंटेंस में, लाइक स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना सेहत के लिए अच्छा है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ओके, लाइक दौड़ना अच्छा है बॉडी के लिए, शरीर के लिए। तो ये नाउन की तरह ट्रीट हुआ यहाँ पे। सब्जेक्ट के प्लेस में दिस इज सेट, इट हैज़ बीन सेट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लाइक आई लाइक रनिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक कुकिंग। तो ये भी एक नाउन है, कुकिंग, प्लेइंग, रनिंग। ये मेरा पसंद है, मेरा पसंद है दौड़ना, मेरा पसंद है कुछ खाना पकाना, ओके, ये नाउन है क्योंकि इसके बारे में तो इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं ना, इसीलिए ये नाउन है। तो चलिए हमेशा एक बात याद रखना, जिरांड जो है हमेशा ING उसके साथ लगे रहेगा वर्ब के लाइक बाद में, और हमेशा ये एक नाउन की तरह ही काम करेगा सेंटेंस में। ये सब्जेक्ट का प्लेस में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट का प्लेस में भी हो सकता है, ओके। सो जिरांड, somehow we have got an idea, a conception about जिरांड। Now let's get straight towards participle. Participle are also divided into three types: past participle, present participle and perfect participle. अब participle होता क्या है भाई? What is participle? Participle एक ऐसा स्पेशल फॉर्म होता है इंग्लिश ग्रामर का जो किसी भी सेंटेंस को प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करने के लिए और परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो और कभी कभार एडजेक्टिव की काम भी करता है एक सेंटेंस में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो पहले बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आप कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो कोई भी सेंटेंस को, तो आपको अनडाउटेडली विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ यू कैन से दैट हाउ, ओके, डोंट वरी, जस्ट लेट मी गिव द एग्जांपल। वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। यहाँ पे जो रनिंग वर्ब यूज़ किया गया है ना, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और किस तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब है? ये एक पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का किस तरह की है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है रनिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके यहाँ पे हम लोगों ने
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट किया। वो कंटिन्यूस टेंस पास्ट टेंस का हो, कंटिन्यूस फॉर्म पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर की हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कंटिन्यूस अगर है तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना चाहिए होगा। लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको इस्तेमाल करना ही है ये। लाइक आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं मेरा टीथ को ब्रश कर रहा था। ओके, ब्रश कर रहा था, मेरा ब्रश का काम सुबह की वक्त अतीत में चल रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। पर कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस है मीन्स आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना बात को, वर्ब के साथ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और एडजेक्टिव के लिए अगर ये काम करता है सेंटेंस में तो ये ऐसा होगा कि ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। एडजेक्टिव यहाँ पे रनिंग ट्रेन जो है, ट्रेन का स्टेट कंडीशन पोर्ट्रे किया गया है, डिपिक्ट किया गया। ट्रेन का कंडीशन है कि ट्रेन चल रहा था, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द स्टेट ऑफ द ट्रेन। सो ही जम्प्ड, इस लड़के ने जंप किया चलते हुए ट्रेन से। समझिए बात को। हियर इट इज ट्रीटेड एज अ एडजेक्टिव। इसके बाद आएगा लाइक पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है दोस्तों? कोई भी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में और परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। तो जब हम लोग यूज़ करेंगे परफेक्ट को, परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए जब हम लोग आएंगे तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हैव, हैज़, हैड, इस वर्ब जो होता है टू हैव वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करना होगा। लाइक राम हैड गॉन टू स्कूल, लाइक राम का स्कूल जाने का काम हो गया था पहले, तो हैड गॉन, दिस इज ऑल्सो अ पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया गया है, क्या यूज़ किया गया? लाइक राम हैड गॉन, गॉन ये गो फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल है, तो हुआ ना। इसके बाद अगर तुम एडजेक्टिव में उसको लेकर जाओ, अगर एडजेक्टिव की तरह वो काम करता है एक सेंटेंस में, तो ये होगा लाइक दिस इज़ अ ब्रोकन कोकोनट, ये एक टूटा हुआ नारियल है। नारियल का जो स्टेट कंडीशन है क्या है? टूटा हुआ है, दिस इज़ ब्रोकन, दिस इज़ अ ब्रोकन कोकोनट। उसका स्टेट कंडीशन पोर्ट्रे कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट? हियर बाय दिस पर्टिकुलर टर्म नेमली broken is used or treated as an adjective in this sentence. The last classification of the participle is perfect participle. Perfect participle वो क्या होता है? Perfect participle अगर आप यूज़ करते हो तो कोई भी काम आप कर रहे हो, उस काम को करने का बाद, निपटाने का बाद, कंप्लीट करने का बाद वो तुरंत और एक काम को आपको करना है, लाइक पिकअप करना है और एक काम को। तो जो पहला काम है उसको पोर्ट्रे करने के लिए आपको बिठाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा परफेक्ट पार्टिसिपल को। कैसे? एग्जांपल दे रहा हूँ, चिंता करने का कोई बात नहीं। जब भी आप परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे कोई सेंटेंस में, तो आपको टू हैव वर्ब का साथ आईएनजी ऐड करके हैविंग के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को ऐड करना पड़ेगा। हैविंग प्लस V3 यानी हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यू हैव टू यूज दिस। हाउ? लाइक मेरा होमवर्क खत्म करने का बाद मैं स्कूल में गया। ओके, लाइक हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, पहला एक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट लाइक टू द स्कूल। लाइक फूल लेने का बाद मंदिर में वो घुसा। लाइक हैविंग प्लग्ड द फ्लवर्स ही और शी एंटर्ड द टेम्पल। लाइक कोई भी एक काम करने का बाद और एक काम तुरंत और एक काम करने का जो आप करना चाहोगे, तो पहला जो काम है जो कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे काम करने के लिए जाओगे, तो पहला वाला काम कंप्लीट होने के बाद उसको पोर्ट्रे हम लोग कर सकते हैं हैविंग से, हैविंग कंप्लीटेड से, लाइक perfect participle. So I think you have got all the things minutely. Okay, so I have tried a little to make all of you understand about all the characteristic traits and classifications of non-finite verbs. So this is all about the non-finite verbs. So far I have tried. Okay, so this is too much for the session. Please stay tuned with me and also enjoy. And if you do find any sort of inconvenience, then don't forget to make me know. Please comment on the comment box and make me know about all the inconveniences. So hereby I am Devjyoti Mitra again signing up for now. Until we meet again, till then stay well and blessed. Thank you.